Adaptation has three related meanings. Firstly, it is the dynamic evolutionary process that fits organism to their environment, enhancing their evolutionary fitness. Secondly, it is a state reached by the population during that process. Thirdly, it is a phenotypic adaptive trait with a functional role in each individual organism that is maintained and has evolved through natural selection. एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन को हम तीन बिंदुओं से इसका अर्थ समझा जा सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवों गतिशील बदलाव होते हैं, जीव अपने वातावरण में ढल सकता है। दूसरा, यह किसी एक श्रेणी के प्राणियों द्वारा पहुंचा गया वह अवस्था है जो गतिशील परिवर्तन के कारण उन श्रेणियों के प्राणियों में आया है। तीसरा, यह समलक्षणी लक्षण है जो हर एक प्राणी में मौजूद है और जो प्रकृति चुनाव के कारण प्राणियों में विकसित हुआ है। Plants grow in different terrain of environment. A special characteristic leads a plant to cope up with their environment. For instance, desert plant has spikes to prevent water loss. Aquatic plant have waxy coating to prevent them from being rotten. Coniferous plant have a conical shape to prevent logging of ice, and there are numerous examples of adaptation of plant. पौधों में एडेप्टेशन या अनुकूलन कई जगह पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए डेजर्ट्स यानी मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनमें कांटे लगे होते हैं ताकि वो पानी को अपने शरीर में बचा सके। जो पौधे पानी में रहते हैं उनके पूरे शरीर में वैक्सी कोटिंग मोम का परत होता है जिससे वो सड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार से जो पहाड़ पे पौधे होते हैं वो त्रिभुज आकार में होते हैं, इससे बर्फ कभी उनके तन पर जमते नहीं है। और ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट के। On the basis of habitat, plants are classified as aquatic plant and terrestrial plant. Aquatic plant that are capable of nourishing itself through water bodies like lakes, ponds, river, etc., such that they can grow and live in water are called aquatic plant. पौधों को निवास स्थान के अनुसार से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक्वेटिक यानी जल में रहने वाले पौधे। ये पौधे अपने पौष्टिकता का आपूर्ति पानी के स्रोत से करते हैं, जैसे कि नदियां, तालाबें। ये पानी में ही बढ़ते हैं और रहते हैं, इसलिए इन्हें एक्वेटिक प्लांट यानी पानी वाले पौधे कहा जाता है। एक्वेटिक प्लांट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, अंडरग्राउंड वाटर प्लांट, इमर्जेंट प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट, these have roots that hang in the water but the plant is not attached to the pond bottom. These roots absorb nutrients directly from the water. They are light and small, so they easily float on water. Moreover, their stems have air filled in them, which prevent sinking. These are mostly found in bunches that float together in water. Duckweed, water lettuce, water hyacinth are the example of it. पानी वाले पौधों को 4 भागों में बांटा गया है: फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट, इमर्जेंट प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका जड़ जो है कि पानी में तैरता हुआ रहता है और ये अपनी पौष्टिकता को पानी से ही सोखते हैं। ये बहुत ही हल्के होते हैं और छोटे होते हैं, इस कारण से ये पानी के ऊपर तैरते हुए रहते हैं। यहाँ तक कि इनके जो तना होते हैं वो खोखला होता है, उनमें हवा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण से ये डूबते नहीं हैं। इन पौधों में एक साथ रहने की काबिलियत होती है या ये हमेशा साथ में ही पाए जाते हैं। डकवीड, वाटर लिट्यूस, वाटर हाइसिंथ इनके उदाहरण हैं। Fixed plants, they have roots that fix the plant in the mud at the bottom of the pond. Roots absorb nutrients from the water beds. They have plate-like leaves that float over the surface of water. Leaves can vary 3 to 10 feet. The stomata in the leaves are in the upper side. They have a leaf which contain waxy coating on the leaf which prevent it from rotting. The stems are hollow and very light. The stems have flexible so that they can bend with the flow of water so that they don't get damaged by the strong current. Lotus, water lily are example of fixed plant. Fixed plant यानी स्थायी पौधे। इन पौधों का जो जड़ होता है वो पानी के नीचे मिट्टी में धंसा हुआ रहता है और वहीं से ये पौष्टिकता प्राप्त करता है। इनके जो पत्ते होते हैं वो थाली के आकार के होते हैं जो कि सपाट होते हैं और पानी में फैले हुए रहते हैं। इनके पत्तों की लंबाई 3 से लेकर 10 फीट तक हो सकती है और पत्तों के ऊपर स्टोमाटा ऊपरी त्वचा पे पाया जाता है। जो तनाएं होती हैं वो खोखले होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। इन तनाओं का
बहुत लचीला होना तय है, क्योंकि वो बहते हुए पानी के साथ मुड़ जाती हैं। इस तरीके से वो पानी की तेज बहाव को भी सह लेती हैं। इनके पत्ते और तनों में मोम का एक परत पाया जाता है, जिसके कारण से ये कभी सड़ते नहीं हैं। वाटर लिली और लुट्रस इनके कई उदाहरण हैं। अंडर वाटर प्लांट, दे हैव नैरो लीव्स विच आर थिन एंड ribbon like or shaped leaves protect them from getting torn by the force of a strong water current. Their leaves don't contain stomata, so they respire through their body surface. Since they are fully submerged in water, hence their teeny roots absorb nutrient from the water beds. They are mostly non-flowering, so they reproduce through vegetative reproduction. They provide oxygen for aquatic plants, so they are also used in aquarium or artificial water beds. Hydrelia vallisneria pondweed are example of underwater plant. अंडरवाटर प्लांट मीन्स पानी के नीचे पाए जाने वाले पौधे। ये जो पौधे होते हैं, इनके पत्ते जो है रिबन के आकार के होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं। रिबन के आकार के होने के कारण से ये बहते हुए पानी की धाराओं में आसानी से रह सकते हैं और पानी की तेज धाराओं को भी सह सकते हैं। क्योंकि इनके पत्तों में स्टोमाटा नहीं होता है, इसलिए ये अपने पूरी त्वचा से सांस लेते हैं और ये पूरी तरीके से चूँकि डूबे हुए रहते हैं, इसी कारण से इनके जो जड़ होते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो पौष्टिकता पानी के नीचे मौजूद मिट्टी से सोखते हैं और ये इनमें फूल नहीं होता है। इसी कारण से ये अपने अंगों के माध्यम से नए बच्चों को जन्म देते हैं। ये पानी के नीचे मौजूद जितने भी जीव जंतु होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हाइड्रेलिया वेनेजुएला पॉन्डवीड नामक इनके उदाहरण है और इनका इस्तेमाल एक्वेरियम में भी किया जाता है। इमर्जेंट प्लांट, दिस प्लांट ग्रो इन shallow areas typically along the banks of marshes, ponds, lakes and rivers. Unlike submerged vegetation, emergent plants are rooted in the ground with their stems, flowers and leaves rising above the water. They rely on aerial reproduction and get their nutrition exclusively from the soil of the waterbed. Arrowhead cuttle are example of emergent plants. Emergent plant यानी उभरे हुए पौधे, ये जो पौधे होते हैं वो छिछले पानी में, खास करके जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पाए जाते हैं। ये नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे या सरोवर के किनारे पाए जाते हैं। अपने विपरीत अंडरग्राउंड प्लांट यानी पूरी तरीके से डूबे हुए पौधों के विपरीत इमर्जेंट प्लांट जो होते हैं, इनके केवल जड़ ही डूबे हुए रहते हैं, जबकि तना, फूल और पत्ते जो है कि हवा में मौजूद होते हैं। ये जो है हवा के द्वारा अपने बीज के कणों को फैलाते हैं और अपना पौष्टिकता जो है पानी के नीचे मौजूद मिट्टी से ये पूरा करते हैं। एरोहेड और कटेल नामक पौधे जो होते हैं, इनके उदाहरण हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट, प्लांट दैट ग्रोज ऑन, इन और फ्रॉम लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट आर ऑफ वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट दे आर grow in, like epiphytic plant that live on trees, lithophytic plant that live on rock or in the rock, helophytic plant that can tolerate periodic waterlogging around roots or even completely submerged under flood water. Terrestrial plant got their name from the word terra, which means land. These plants have wide range from botanical plant to redwood. The most remarkable feature of this plant, they can survive in all fronts of terrain, from desert land to ice caps of Antarctica. जो पौधे जमीन पर या जमीन के ऊपर या जमीन में उपजते हैं, उन सभी पौधों को टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। ये अपने निवास स्थान के आधार पर कई भागों में बांटे जा सकते हैं, जैसे एपीफाइटिक प्लांट, जो पौधे केवल किसी अन्य पेड़ के ऊपर रहते हैं। लिथियोफाइटिक प्लांट, जो पौधे चट्टानों या पत्थरों के नीचे या अंदर पाए जाते हैं। हेलोफाइटिक प्लांट, जो पौधे किसी भी प्रकार का बाढ़ को सह सकते हैं या वो पूरी तरीके से डूबे हुए रहते हैं। जो टेरेस्ट्रियल पौधे होते हैं, उनका नाम टेरा शब्द से आया, जिसका मतलब लैंड होता है। ये पौधों का कई प्रकार का प्रजाति है, जो सबसे नन्हे पौधे बॉटनिकल प्लांट से लेकर सबसे विकराल पेड़ रेडवुड तक इनमें शामिल हैं। सबसे अनोखा
इनमें क्षमता ये है कि ये पौधे जो है वो सभी प्रकार के ज़मीन पर पाए जा सकते हैं। बहुत गर्म डेजर्ट रेगिस्तान या मरुस्थल से लेकर सबसे ठंडे प्रदेश अंटार्कटिका में भी ये पाए जाते हैं। Xerophytes. The word xerophyte is a Greek word. Xero means dry place and phyte means plants. The species of plant that has an adaptation to survive in an environment with its little water, such as desert or an ice or snow covered region of Arctic. Example: cacti, pine, apple, palm tree, gymnosperm, etc. Since desert has a scarce water and rainfall along with hot and dry conditions, so these plants have some adaptation to cope up with these conditions. They have thick green stem which does photosynthesis, have spreading root, long root to absorb groundwater. Leaves are turned into spike to prevent transpiration. There are adaptations to conserve water and store water. They shut down their metabolic activity during extreme dryness. They use greater proportion of water for photosynthesis and growth and lose less water to atmosphere. Xerophyte, ये जो शब्द है वो ग्रीक से आया है। जेरो का मतलब होता है सूखा जगह और फाइट्स का मतलब होता है पौधे। जेरोफाइट्स के जो प्रजाति हैं वो पूरी तरीके से सूखे हुए प्रदेश में या जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, जैसे कि मरुस्थल या फिर बर्फ से ढकी हुई सभी जगह आर्कटिक की जगहों पे पाए जाते हैं। ऐसे जगह पर रहने वाले पौधों का कुछ उदाहरण है कैक्टस, पाइनएप्पल, पाल्म ट्री, जिम्नोस्पर्म। चूँकि मरुस्थल में बहुत कम पानी होता है और बहुत कम बारिश होता है, इतना ही नहीं वहाँ पर बहुत ही गर्मी और सूखा जगह होता है। इसी कारण से ऐसे पौधे जो होते हैं वो ऐसे मरुस्थल की वातावरण को झेलने में समर्थ होते हैं। उनके पास मोटा तना तो होता है जो कि अपने से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और साथ ही साथ वो पानी को सूख कर रखते भी हैं। इतना ही नहीं, इनके जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं और वो पूरे के पूरे प्रदेश में फैली हुई रहती हैं ताकि पानी की एक एक बूंदों को वो सोख सकें। इसके अलावा जो तना होता है उसमें जो पत्ते होते हैं उन्हें कांटों में बदल दिया जाता है ताकि पानी का बचत किया जा सके, ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी नष्ट ना हो। ये जो है पूरी तरीके से सूखे हुए जगह पर रहने में अपने आप को समर्थ बना चुके हैं। ये पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। इनकी कोशिकाओं की चलने वाली गतिविधियां जो है कि सुखाड़ में एकदम से बंद हो जाती हैं और इनके पास पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है जो कि इनके तनों में और जड़ों में इकट्ठा रहता है। ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण और अपने शरीर के विकास के लिए करते हैं और बहुत कम पानी को वातावरण में छोड़ते हैं। Cone bearing seed plants, which are mostly trees and some are shrubs, they give wood for various construction work and for furniture. Examples: cedar, firs, junipers, pines, redwoods, etc. Their wood is used for timber and paper making. The plants that grow in an dry, cold climate which occurs at high hills of a mountain are called alpine plants. Example: mosses, lichen grass, ferns, etc. They bear low temperature, dryness, ultraviolet radiation and short growing season. Coniferous plants are tall and conical in shape which prevent accumulation of snow as snow slides off from their branches. They don't bear flower directly, bear seeds as in gymnosperm. The leaves have waxy coating and they are needle shaped which prevent them from being rotten under snow in winter. Alpines or perennial herbs have large, well-developed root which store food through the winter, which are used in the spring for new shoot development. There are moss that grows at 6,480 meter on Mount Everest. Arneria bryophylla occur at 6,180 meter in is the highest flowering plant in the world. पहाड़ पे पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं वो
ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉनिफेरस पौधे, ये केवल पेड़ होते हैं। ये वो पौधे हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर लकड़ियाँ देने वाले पौधे होते हैं। कुछ जो है कि झाड़ियाँ भी होती हैं। इनकी जो लकड़ियाँ कई प्रकार के निर्माण स्थल में प्रयोग की जाती हैं और इन्हें कई प्रकार की सोफ़ा या फिर कई प्रकार के फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण सेदार, फर्स, जूनिपर, पाइन्स, रेडवुड है। इनकी लकड़ियाँ कभी कभी कई अन्य कार्यों के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। साथ ही साथ ये पेपर बनाने के भी काम में आती हैं। ये जो पौधे हैं वो बहुत ही सूखे प्रदेश वाले ठंडक जगह में भी मौजूद होते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर, और ऐसे ही पौधों को एल्पाइन कहा जाता है। इनके उदाहरण मॉसेस, लिचन, ग्रास, फॉर्न्स होते हैं। ये कई प्रकार के चीज़ों को सहन कर लेते हैं, जैसे कि बहुत कम तापमान, सूखा और अल्ट्रावायलेट किरणों को, और बहुत कम उपजाऊ मौसम को भी ये झेल लेते हैं। कॉनिफेरस प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और वो कोन के आकार के होते हैं, जिसके कारण से उनमें कभी भी बर्फ इकट्ठा होकर उनकी टहनियों और डालों पर जमा नहीं होती, वो ससड़ जाती हैं उनके डालियों पर से। वे इनमें फूल नहीं होते हैं, ये सीधे बीजों को जन्म देते हैं, जैसा कि जिम्नोस्पर्म में होता है। इनके जो पत्ते होते हैं वो मोम के परत से ढके हुए रहते हैं और ये सुई के आकार के होते हैं, जिसके कारण से कितना भी बर्फ इनके ऊपर जम जाए फिर भी ये सड़ते नहीं है। एल्पाइन्स या साल में होने वाली वनस्पतियाँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित होते हैं। इनके जो जड़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाना इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि ठंड का मौसम जैसे ही ख़त्म हो और बसंत ऋतु आए तो नए तनाव को जन्म देने के लिए, विकसित होने के लिए इनमें खाना मौजूद होता है। कुछ मॉसेस जो 6480 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट के पहाड़ों पर पाई जाती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पौधा जो कि 6180 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, उसका नाम एरनेरिया ब्रायोफाइला है। प्लांट्स इन प्लेन्स, the most versatile forms of vegetation is found on the flat area of land, i.e. plain. These differ from herbs, tulsi, to large woody tree, banyan tree, i.e. herbs and shrubs, climber, creepers, trees, all type of flora are present in plains. Mostly agriculture practice occur in plains, so we see forms of grasses like rice, wheat, maize, millet, sugarcane, bamboo, etc. These plants can survive in cold as well as hot climate conditions. These have lots of branches with plenty of leaves and flowers and shed their leaves during winter. Neem, mango, peepal, sesame, banyan, ashok, sal, teak, etc. are the example of plant on plain lands. Plants in plains means पौधे जो कि सपाट भूमि पे पाए जाते हैं। ये बहुत ही कई प्रकार के होते हैं। नन्हे से पौधे तुलसी से लेकर बहुत बड़े विकराल आकार के पौधे बनियान पेड़ तक लेकर इनकी कई प्रजातियां होती हैं। ये झाड़ियां भी हो सकते हैं, वनस्पतियां भी हो सकते हैं, क्लाइंबर, क्रीपर या बड़े बड़े पेड़ भी हो सकते हैं। ये हर एक प्रकार के फ्लोरा यानी जमीन पे पाए जाने वाले जितने भी पौधों का सभी प्रकार ज़्यादातर सपाट भूमि पे ही पाया जाता है। क्योंकि सपाट भूमि पे ज़्यादातर खेती होती है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पर कई प्रकार का ग्रासेस यानी कि घास पाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, मकई, ईख या फिर बांस का जितना भी प्रजाति है वो सभी घासी की प्रजाति में आते हैं। इन सभी पेड़ों में बहुत सारी डालियाँ होती हैं, साथ ही साथ उन डालियों में बहुत सारे पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, और ये अपने पत्तों को ठंड के मौसम में छोड़ देते, त्याग कर देते, झाड़ देते हैं। इनके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि नीम, मैंगो, पीपल, शीशम, बनियान, अशोक, साल, टीक इत्यादि। Plants in marshy area. The plant that grows in area prone to flood or can tolerate coastal saline are called marshy plants. They are also called halophytes. They contain complex salt
filtration system and complex root system to cope and saltwater immersion and wave action. They are adapted to low oxygen condition of waterlogged mud. The soil in marshy areas are sticky and clayey and covered with water, so these plants have aerial root that rises above the surface of water. They absorb and store carbon dioxide in greater quantity than other forests, making them among the planet's best carbon scrubber according to NASA satellite data. It is adapted to ranges of salinity, temperature and moisture and other key environmental factors. Example of these are red Rhizophora, mangle, white Longicularia racemosa and black Avicennia germinans. प्लांट्स इन मार्सी एरिया का मतलब पौधे जो कि दलदली जगह पे पाए जाते हैं। ये जो पौधे होते हैं वो बड़ा ही आसानी से बाढ़ जैसे क्षेत्रों को सह सकते हैं। नहीं वो तटीय क्षेत्र में जो नमकीन खारा पानी होता है उसे भी झेल कर ये पनप सकते हैं। इसी कारण से इनको दलदली जमीन के पौधे भी कहा जाता है। इनको एक और नामों से जाना जाता है हेलोफाइट्स, और ये बहुत ही जटिल जड़ तंत्र होता है इनमें, जिनके कारण से ये कई प्रकार की नमकीन पानी को सह सकते हैं और पानी के तरंगों को भी झेल जाते हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि ये डूबे हुए रहते हैं, इसी कारण से बहुत कम ऑक्सीजन जो है कि इनके जड़ों को मिलता है। ऐसी स्थिति में भी ये जिंदा रह लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दलदली जमीन में जो मिट्टी होती है बहुत ही चिपचिपी और चिकनी होती है। साथ ही साथ चूँकि इन मिट्टी के ऊपर पानी जमा होता है, इसी कारण से इन पौधों में हवा में मौजूद जड़ें मौजूद होती हैं, जिसके कारण से ये हवा से ही सांस लेते हैं। नासा के एक अध्ययन के अनुसार ये जो पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में समर्थ हैं। इसी कारण से बाकी सब वनों के परस्पर इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता होती है। इसलिए ये दुनिया के बेहतरीन कार्बन अवशोषक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कई चीज़ों को सह सकते हैं, जैसे कि बहुत खाड़ी पानी वाले भूमि को भी, अत्यधिक तापमान को भी और नमी भरे प्रदेश को भी। इसी प्रकार के कई प्रकार के वातावरणिक घटनाओं को ये सह सकते हैं। इसके अलावा इनके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि राइजोफोरा, मैंगल, लॉन्गलक्यूरिया राइसोमोसा, एविसेनिया germinaceous. Plants in evergreen forest. Forests made up of evergreen trees are evergreen forest. They are tall, covered with numerous leaves. These plants have waxy coating on leaves which drain off the rain water from them. Such forests are warm in climate and receives heavy rainfall throughout the year. The tree does not shed their leaves even in winter, hence called evergreen leaves. Occupies 7% of the Earth's surface and harbor more than half of the planet's terrestrial plants and animals. They are so dense that even the sunlight does not reach the ground. They can confine sunlight for photosynthesis and produce food in a huge amount for themselves as well as for animal. Example: banana, coconut, Pinaceae, Cupereaceae, oaks, eucalyptus, etc. प्लांट्स इन एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी पौधे जो कि सदाबहार वाले जंगल में होते हैं। वो सभी जंगल जो कि सदाबहार वाले पौधों से भरे हुए हैं, उन सभी जंगलों को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। वो बहुत ही लंबे होते हैं, उनमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। इन पौधों में पत्तियों में खास करके मोम की एक परत होती है, जिसके कारण से जब भी बारिश होती है तब बारिश की कणें जो है कि इनमें टिक नहीं पाती हैं। इसके अलावा ये जो जंगल हैं वो बहुत ही गर्म प्रदेश को भी सह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ साल भर तक बारिश होती रहती है। ये जो पेड़ हैं वो कभी भी अपना पत्ता नहीं झाड़ते हैं, यहाँ तक कि ठंड में नहीं। इसी कारण से इन्हें सदाबहार का पेड़ भी कहा जाता है। ये पृथ्वी का 7% हिस्सा में अपना क्षेत्र आधिपत्य रखते हैं। इतना ही नहीं, ये पूरी दुनिया के आधे जीव जंतु और पौधों का निवास है। ये
बहुत ही घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी इन जंगलों की धरती पर नहीं पहुंचती है, मिट्टी पर नहीं पड़ती है। ये जो होते हैं वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर अपने लिए और जीव जंतुओं के लिए खाना बनाते हैं। इनके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बनाना, कोकोनट, पाइनेशिया, क्यूपेरेसिया, ओक्स, यूकेलिप्टस पौधे इत्यादि। Insectivorous plants that derive some or most of their nutrient but not energy which they derive from photosynthesis, from trapping and consuming animals or protozoa, typically insects and other arthropods. These plants live in habitats where soil lacks a nutrient. These plants have a unique way to capture their prey. Picture plant, it is picture-shaped plant. It secretes a sticky substance from its edges, which makes the insect sitting on it slip inside the picture, hence getting trapped. Venus flytrap, it has two lobes which have spikes on their edges. As the insect sits on it, lobes shut, thus entrapping the insect. Bladderworth vacuums, it has a special bag where it traps its prey and digests it. The trap has covering also. The trap usually secretes sugar that lure insects. इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीड़े खाने वाले पौधे, ये जो पौधे हैं वो या तो कुछ नहीं तो ज़्यादातर अपना पौष्टिकता जो है वो कीड़ों या किसी प्रकार के जानवरों या प्रोटोजोआ या आर्थ्रोपोडा को पकड़कर पूरा करते हैं। हालांकि ये अपना मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत इनका प्रकाश संश्लेषण के ही माध्यम से आता है। ये जो पौधे होते हैं वो ऐसी मिट्टी में रहते हैं जहाँ पर पौष्टिकता बहुत कम होता है। ये जो पौधे हैं उनका कीड़ों को पकड़ने का, अपने शिकार को पकड़ने का कई सारा तरीका होता है, जैसे कि पिक्चर प्लांट। ये जो होता है वो पिक्चर आकार का होता है। वो कई चिपचिपा पदार्थ को अपने किनारे पर से छोड़ता है, जिसके कारण से जब भी कोई कीड़े इसके किनारे पे बैठते हैं तो वो चिपक जाते हैं। इसी कारण से वो फंस जाते हैं और इसे धीरे धीरे पचा लिया जाता है। वेनस फ्लाईट्रैप, इसके पास दो तंतुएं होती हैं जिनमें बहुत सारे कांटे होते हैं किनारों पर। जैसे ही किसी प्रकार का भी कीड़ा इनके तंतुओं पे बैठता है, इनकी तंतुएं बंद हो जाती हैं। इस तरीके से कीड़ा उसमें कैद होकर मर जाता है और इसे पौष्टिकता वो सोख लेता है। ब्लैडरवर्थ वैकम, इनके पास खास प्रकार का पाउच होता है जिसके अंदर किसी भी शिकार को फंसाया जा सकता है और पचाया भी जाता है। ये पाउच जो है कि इसके ऊपर ढक्कन लगा हो रहता है। इन पाउचों में ज़्यादातर ये पौधे जो है कि चीनी की तरह एक रसायन को छोड़ते हैं जो कि किसी भी कीड़े को आकर्षित करता है। Non-green plants make their food from dead plants and animals. They do not contain the green pigment called chlorophyll. Therefore, they cannot carry out photosynthesis. Mushroom are non-green plant that have its food from the dead and decaying plant matters or एनिमल्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी बिना हरे रंग वाले पौधे, ये जो पौधे होते हैं वो अधिकतर मरे हुए जानवर या फिर पौधों के अवशेष पर ही जिंदा होते हैं। क्योंकि इनके पास किसी हरे रंग की छोटी छोटी कणें नहीं पाई जाती इनकी कोशिकाओं में, जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। इसी कारण से ये जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। मशरूम एक ऐसा पौधा है जो कि नॉन ग्रीन प्लांट कहलाता है। ये अधिकतर गोबर या फिर कई प्रकार के पौधों और जानवरों के अवशेष के ऊपर जिंदा रहता है। पैरासाइटिक प्लांट्स ग्रो ऑन another plant called host plant and derives nutrient from it. They grow special roots that penetrate the body of the host plant slowly and steadily, killing it. Cuscuta mistletoe are example of such plant. पैरासाइटिक प्लांट यानी परजीवी पौधे ऐसे होते हैं जो कि किसी अन्य पौधों के ऊपर जन्म जाते हैं, जिनको ये होस्ट कहा जाता है और उन्हीं से पौष्टिकता लेते हैं। ये खास प्रकार की तनाव को विकसित करते हैं, जो कि तनाएं जो है अपने होस्ट प्लांट के अंदर जाती हैं और धीरे धीरे उनकी पौष्टिकता को सोखते रहती हैं। और ये इतने सोख लेते हैं ताकि इनके जो होस्ट हैं वो या तो अधमरे हो जाते हैं या मर भी सकते हैं। कास्कुटा और मिस्टलटोए इनके कुछ उदाहरण हैं।